لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله مولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان اسلام، میرے محترم معزز اور گرامی سامعین ذوی احترام، کائنات کا رسول آواز دے رہا ہے فطرت بشریت کے مطابق. جو کہ فطرت بشریت یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اچھا کہا جائے، ہمیں برا نہ کہا جائے. کوئی بھی ہو، برے سے برا ہو، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اچھا کہا جائے، اور انسان غلط سے غلط کام کرے تو اس کو بھی صحیح ثابت کرنے پہ لگا رہتا ہے. تو فطرت یعنی فطرت یہ ہے بشریت کی کہ ہر انسان اچھا بننا چاہتا ہے اور اچھا ہونا چاہتا ہے. اب فطرت بشریت چونکہ شریعت اور فطرت دونوں اگر الگ الگ ہو جائے تو انسان کی زندگی کا کارواں جو ہے وہ آگے نہ بڑھ پائے. لہٰذا اللہ نے بھی اسی اعتبار سے کام کیا، فرمایا جو ہے کہ جیسے شریعت ہوگی اسی اعتبار سے فطرت کے مطابق ڈالی جائے گی، فطرت کے خلاف نہیں ڈالی جائے گی. جبکہ بناوٹ اس کی جو ہے وہ فطرت کے بالکل الگ انداز میں ہے. اس لیے کہ انسان جب بنا رہا تھا اللہ تو کہا جو ہے سب سے پہلے جاؤ فلاں جگہ سے بنجر زمین لے کے آؤ، پھر اس کے بعد اپجاؤ زمین لے کے آؤ، پھر اس میں ہوا بھی ملایا، اس میں پانی بھی ملایا، اس میں آگ بھی ملایا، اور ایسا ایک مکسچر تیار کر کے انسانی پتلا بنایا کہ فرشتوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا معبود یہ تو خریزی برپا کرے گا. بھائی اس سے پہلے تو کہیں انسان بنتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. پھر فرشتوں سے اللہ نے وہی پوچھا کیا تم عالم غیب رکھتے ہو؟ کہا معبود ہمیں علم غیب تو نہیں ہے، اس لیے کہ جو تم نے بتایا وہ جانتے ہیں. اگر ہم علم غیب رکھ رہے ہوتے تو پھر آدم خلیفہ کیوں بنتے، ہم ہی نہ بن جاتے. ہمیں ریجیکٹ ہی اسی بیس پہ کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے. پھر اللہ نے پوچھا پھر اعتراض کیوں کر رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ خونریزی برپا کرے گا، فساد برپا کرے گا؟ کہا پروردگار اس کی بناوٹ دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے خونریزی برپا کرے گا. اس لیے کہ تو پانی بھی ملا رہا ہے، آگ بھی ملا رہا ہے، ہوا بھی ملا رہا ہے، مٹی بھی ملا رہا ہے. نہ آگ کا پانی سے کوئی رشتہ ہوتا ہے، نہ مٹی کا ہوا سے کوئی رشتہ ہوتا ہے. جب تم متضاد چیزوں کو ایک کر دے رہا ہے تو فتنہ تو برپا ہی ہوگا. اس لیے کہ اس کی خونریزی کرنا اس کی فطرت میں ہوگی. اللہ نے کہا فرشتوں انی عالم و مالا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، پریشان نہ ہو، میں یہ سب کر رہا ہوں. اس کے بعد اس کی جو ہے میموری ایک دے رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے یہ جو ہے کنٹرول کر سکے ان ساری چیزوں کو. اس لیے اللہ نے اس سب کے ساتھ جو ہے ایک عقل کا پینل بھی لگا کے بھیجا تاکہ جو ہے اس سے ہم اس کو کنٹرول کر سکے. اور عزیزو عقل کا پینل اتنا مضبوط ہے کہ اللہ نے کہا تمہارا جو امام ہے وہ بعد میں تمہارا ہادی ہے، عقل تمہاری پہلے ہادی ہے. یعنی جو ہے تمہاری عقل پہلے ہدایت کرے گی، امام تو بعد میں بتائے گا. امام کب بتائے گا؟ کہا جب تمہاری عقل کام کرنا بند کر دے گی پھر امام بتائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس لیے کہ امامت کا مسئلہ یا نبوت کا مسئلہ وہ بات کا مسئلہ ہے سب سے پہلے. اسی لیے شریعت نے کہا آنکھ بند کر کے. دوسرے مذہب میں یہی ہے کہ جب کوئی جواب نہ دے پاؤ تو کہہ دو یہ حرام ہے.
पूछना नहीं। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा तुम अली के मानने वाले हो, इसलिए कि जिसने दावे सलूनी किया था तो उसके यहाँ कोई चीज ना का मसला नहीं है, बल्कि कुरान तो चीख चीख के आवाज दे रहा है तुम दिमाग नहीं रखते, क्या अक्ल नहीं रखते, क्या सुम्मुम बुकमुन उम्मीद फहुला यज़ून, क्या अंधे गूंगे और बहरे हो गए हो कि दिमाग रखते हो लेकिन सोचने की सलाहियत सल्ब हो गई है, कान रखते हो सुनने की सलाहियत खत्म हो गई है, तुम कहाँ जा रहे हो। यानी इस्लाम जो है वो ये नहीं कहता कि आप आंख बंद करके मान लीजिए, लेकिन आप जो भी मानिए उसे रिसर्च के साथ मानिए, दलील के साथ मानिए, इसलिए कि अगर आप आंख बंद करके मानेंगे तो ये काम नहीं चलने वाला है। अमल में तो आप आंख बंद करके मान सकते हैं, क्यों, इसलिए कि अगर जो है हम अमल के मामले में ढूंढने चले जाएं कि कौन चीज कहाँ से पाक होगी, कौन चीज कैसे होगी, तो सुबह से लेकर शाम तक हमारी जिंदगी इसी में कट जाएगी ढूंढते ही। तो हम अपनी रोजी रोटी कब चलाएंगे, अपनी जिंदगी कैसे बढ़ाएंगे। इसलिए इमाम ने कहा तुम मत परेशान हो, हम अपनी गैबत कुबरा में अपने कुछ नायबीन को मुंतखब कर दे रहे हैं, वो ढूंढ के निकाल के तुम्हें आसानी से सजा के दे देंगे प्लेट में कि तुम जाओ बस तौज़ीहुल मसाइल पढ़ लो, तुम्हारे मसले मसाइल हल हो जाए। अजीजों ये मौला ने बता दिया, लेकिन अकीदे के मसले में कहा ये नहीं काम चलेगा कि हमने कहा अल्लाह ने पूछा और फरिश्तों ने पूछा तुम्हारा अल्लाह कौन है, तो हमने बताया कि जो है मौली साहब ने बताया था कि अल्लाह एक है। वहाँ पे फौरन सवाल होगा अल्लाह एक है तो क्यों माना तुमने, अली को इमाम माना तो क्यों माना, नबी को नबी माना तो क्यों माना। इसलिए कि अकीदे में जो है वो कोई समझौता नहीं है, अकीदे में जवाब आपको देना होगा। किसी को मान रहे हो तो क्यों मान रहे हो। तो अजीजों अक्ल जो है पहले है, इसलिए मासूम ने कहा कि जब भी तुम कोई काम करो पहले मशवरा किससे लो, कहा अक्ल से मशवरा लो, अगर ये राय दे रही है तो फिर काम करो। अब उसके बाद कुछ चीजें ऐसी आ जाती है कि जो अक्ल मावराए अक्ल होती है, जैसे कि मासूम की ज़वात मुक़द्दसा या ज़ात तौहीद का मसला है तो वो हमारी अक्ल से बालातर है। इसलिए क्यों, हमारी अक्ल छोटी सी है, इनकी ज़ात बहुत बड़ी है। कहा इनके मसले में जब तुम्हारी अक्ल काम करना बंद कर दे और कोई चीज न समझ में आए तो उस पर एतराज न करो, बल्कि हमारी तरफ लौटा दो, हम जाने वो रवायत जाने, तुम जो है उस पर अपना नजरिया मत कायम करो। क्यों, इसलिए कि हम उस मकाम पे खड़े हैं, अगर तुम अपना नजरिया कायम करोगे तो इब्लीस बन जाओगे। इसलिए कि इब्लीस की क्या गलती थी भाई, उसने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सब कुछ किया, गलती किस जगह पे हुई, कहा उसने अपना नजरिया रखा। अल्लाह कह रहा है शरीयत के मामले में तुम अपना नजरिया मत रखो, जो रखा गया है, जो लिखा गया है, जो बताया गया है बस उसी पे मानते रहो। अगर अपनी राय कायम करोगे तो फिर शैतान के नुमाइंदे हो सकते हो, अल्लाह के बंदे नहीं हो सकते हो। एक सलवात मोहम्मद इसलिए कि ये नजरिया अजीजों अक्ल के बाद जो है इमाम ज़ाहिर और इमाम बातिन को रखा गया। और ये इसलिए नहीं रख दिया कि अल्लाह जो है मजबूर था या परेशान था, नहीं, वो इतनी मोहब्बत करता था इसलिए उसने रख दिया। भाई इतनी मोहब्बत करता, जनाबे नूह ने हाथ फैला दिया, परवरदिगार अब नहीं, अब ये नहीं सुधरेंगे, 1950 वर्ष हो गए हैं, अब इनके ऊपर अज़ाब नाजिल ही करते। अल्लाह ने कहा कर तो दूंगा लेकिन जाओ खजूर का दरख्त लगाओ। पहले दरख्त लगा दिया, बड़ा हुआ, जैसे ही फल आए, अभी फल पके ही थे कि आप दरख्त काट डालो। जनाबे नूह घबरा गए, परवरदिगार जब कटवाना ही था तो लगवाया क्यों था। कहा ऐसा करो, अब जितने इसमें से बीज निकले हैं एक फल दरख्त से, इन सबको बो दो। अब जब सबको बो दिया तो पहले एक दरख्त था, पूरा बाग हो गया, अब जैसे ही उसमें फल आएगा आप फिर सबको काट डालो। 3-4 मरतबा ये अमल जनाबे नूह ने किया, आखिर में सजदे में गिर पड़े। महबूब जब कटवाना है तो फिर लगवाता क्यों है। अल्लाह ने कहा यही तो बताने के लिए तुम्हें लगवाओ कटवा रहा हूँ कि तुम एक दरख्त लगा रहे हो, उसको सींच के बड़ा कर रहे हो, तो इतनी मोहब्बत हो जा रही कि उसको काटते हुए तकलीफ हो रही है। हमने अपनी मखलूक को पैदा किया है और तुम कह रहे हो कि एक लम्हे में सबको गर्क कर दूं, किसी को ना छोड़ूं। तो अजीजों अल्लाह तो जो है इतना करीम और रहीम है, इसलिए उसने मोहब्बत के मामले में करके हमें इतना ज्यादा सजा के दिया है, संवार के दिया है कि मेरे बंदे तुझे कोई तकलीफ ना हो, तुझे कोई परेशानी ना हो, तू मुश्किलात में मत मर। बल्कि ये तो मौलवियों ने डरा डरा के कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नौजवान बेचारा इतना डरने लगा कि रात भर सलीमा में जरूर रहेगा, लेकिन रास्ते में अगर मस्जिद पड़ गई तो दूसरी तरफ से जाएगा। कहा रात है, मस्जिद में ना जाना, यहाँ डर जाओगे। मतलब वहाँ नहीं डर रहा है, मौलवियों ने इतना डराया। अब कौन समझाए कि अल्लाह डराने की शय नहीं है। वो तो कह रहा है हमारे पास आओ तो सही, तुम अगर हमारे करीब आओगे तो हम तुम्हें मिसली अपने जैसा बना लेंगे।
अल्लाह से डरने के लिए कहा गया, लेकिन ऐसे नहीं डरने के लिए जैसे खूंखार जानवर से डरा जाता है। अल्लाह से ऐसे डरने के लिए कहा गया जैसे अपने वालिदैन से इंसान डरता है, कि जहाँ पे जो है डर भी होता है और उम्मीद भी होती है। तो उम्मीद सबसे आगे है, इसलिए कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? का रहमत खुदा से मायूस हो जाना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जानता है कि तुम्हारी हैसियत और कैपेसिटी कितनी है। इसीलिए अल्लाह ने कहा हम आजमाइश भी उतनी ही लेते हैं कि जितना इंसान बर्दाश्त कर सके, और अता भी उतना ही करते हैं जितना इंसान बर्दाश्त कर सके। अगर उससे ज्यादा मिल जाए जब भी हम गुमराह हो जाएंगे, और ज्यादा अगर आजमाइश डाल दी जाए जब भी हम गुमराह हो जाएंगे। कहा इसलिए बस उतना ही रखा जाए कि जितना तुम कर सकते हो। लेकिन अजीजों, हमारा मेयार ये है कि हम अल्लाह के बारे में पहले सोचने लगते हैं, लेकिन जिस मकाम पे हम अल्लाह को रख के सोचते हैं वहाँ तो आले मोहम्मद का भी मकाम नहीं है। हम तौहीद को जानते ही नहीं, हम पहचानते ही नहीं, और जहाँ पे हम आले मोहम्मद को रखते हैं वहाँ से तो सलमान और अबूजर का मकाम शुरू होता है कि यहाँ से इनकी मंजिलत है। और अजीजों, जहाँ हम सलमान और अबूजर को रख रहे हैं वहाँ से तो हमारे वालिदैन का मकाम शुरू होता है कि इनकी इज्जत व बुलंदी है। और फिर अजीजों, जहाँ पे जो है हम वालिदैन को रखते हैं वहाँ के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं, कुछ पहचानते ही नहीं। इसलिए कि अजीजों, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह ने आज तक किसी को एक रोटी देने के लिए आया है, न मौला किसी को एक रोटी देने के लिए आए हैं। और अगर किसी को आए हो तो वो बताए कि अल्लाह ने आके हमें दिया है, मौला ने हमें आके दिया है। ना अल्लाह देने आता है ना मौला देने आते हैं, वसीला इन्हीं के सदक़े में मिलता है, लेकिन देने नहीं आते हैं अजीजों। लेकिन जो हमारे वालिदैन हैं वो क्या करते हैं? का खुद भूखे रहते हैं, हमारा पेट भर देते हैं, खुद की जिंदगी दांव पे लगा देते हैं ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो सुनहरा हो जाए और हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? का इधर बड़े हुए तो पहला जुमला का आपने हमारे लिए किया ही क्या है? ये तो सबका फर्ज था। तो ना अल्लाह कभी कुछ देने आता है ना मौला देने आते हैं। लेकिन जिसने सब कुछ किया उसके बारे में जब तुम ये कह रहे हो कि आपने किया ही क्या है, तो आपसे क्या उम्मीद की जाए कि अल्लाह का हक अदा करोगे और मौला का हक अदा करोगे? पहले जो सामने का मोहसिन है उसका तो हक अदा करके बताओ। एक सलवात पर मोहम्मद सब चीजें जो है एकदम सिस्टम से इस्लाम ने रखी है। और फिर उसके बाद आगे पूरा सिलसिला एक बताया है कि किस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ना है। क्योंकि इसमें दोनों तरफ से कंडीशन है कि जहाँ पे औलाद को इताअत का हुक्म दिया गया है वहाँ माँ बाप को सही परवरिश का हुक्म दिया गया है। इसलिए कि औलाद बाद में आती है, माँ बाप पहले आते हैं। अगर हम जो है आले मोहम्मद के तरीके से परवरिश करें तो ये जो है हमारे सामने नौबत ना है। लेकिन चूंकि हम उस एतबार से करते नहीं है, करते दुनिया के एतबार से। जब दुनिया के एतबार से करेंगे तो दुनियावी जवाब ही तो मिलेगा। अगर आले मोहम्मद के एतबार से करें, क्योंकि मौला ने जो फरमाया वो बड़ा शानदार नमूना पेश किया है। फरमाया पहली साल से लेकर 7 साल तक माँ बाप जो है वो गुलाम है और औलाद जो है वो बादशाह होती है। और बादशाह जो मांगे वो गुलाम को पूरा करना पड़ता है। फिर फरमाया 7 साल से लेकर 14 साल तक जो है वो माँ बाप बादशाह हो जाते हैं, औलाद गुलाम हो जाती है। क्यों? इसलिए कि ये नक्श करने की उम्र है। जो सिखाया जाएगा 7 साल से 14 साल तक वो पूरी जिंदगी याद रहेगा, मरते दम तक याद रहेगा, इंसान नहीं भूलता है। का ये तुम्हारी परवरिश का मामला है। का इसलिए औलाद अब गुलाम हो गई, तुम बादशाह हो गए। और उसके बाद फरमाया 14 से जो 21 साल का पीरियड है उसमें माँ बाप बादशाह है और औलाद वजीर है। और वजीर का काम क्या होता है? कहा जब बादशाह कोई निर्णय या फैसला ले तो सबसे पहले अपने वजीर से मशवरा करे, अपने मंत्री से मशवरा करे कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तब जाके वो काम आगे बढ़ता है। तो अगर अजीजों हम इस एतबार से पाले तो फिर मामला आगे बढ़े। इसलिए कि जब हम उसको बादशाह हो गए और वजीर उसे बना दिया, तो अब जब हम हर मामले में जो है अपनी औलाद से मशवरा लेंगे तो उसका 2 फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि उसको भी ये एहसास होगा कि घर के अंदर हमारी भी कोई इज्जत है, हमारी भी कोई अहमियत है। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपके ज़ेरे साया रहते काम करते करते 21 बरस की उम्र आते आते वो खुद एक मुकम्मल इंसान बन चुका होगा। और जब आप पीछे हटेंगे तो वो आपकी जगह ले चुका होगा। चूंकि आपकी जब छत्र छाया में बड़ा होगा तो फिर उसी एतबार से वो आप अमल करता जाएगा। लेकिन अगर आपने जो है दूसरों के हवाले छोड़ दिया है तो जहाँ की सोहबत में रहेगा उसी एतबार से बड़ा
ہوگا उसी एतबार से आगे बढ़ेगा। फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे कि हमने तो जो है औलाद हमारी सुनती नहीं, पहले आप जिम्मेदार हैं। इसलिए कि अल्लाह ने कहा है जहाँ पे कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो ये नहीं कहा कि वालिदैन जैसे भी उनके ऊपर रहम नाजिल फरमा, कहा ऐसे ही रहम नाजिल फरमा जैसे उन्होंने मेहनतें की थी। अगर हमने सही परवरिश की है तो हम रहमत के हकदार हैं, वरना जहमत के बाइस बन जाएंगे। एक सलवात पर मोहम्मद जिम्मेदारी तो हमारी है ना अज़ीज़ों, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए कि रसूल की एक वसीयत है गदीर के मैदान में कि जो यहाँ मौजूद है वो सुन ले, जो नहीं मौजूद है उस तक ये खबर पहुँचा दी जाए। और अलल औलाद वल वालिद, जितने भी माँ बाप हैं उनके ऊपर लाजिम है कि अपनी औलाद को विलायत अली की तालीम दे। अब अगर इंसान अपने आप को ये समझता है कि हम बाप होने का हक अदा करना है तो अली के साए में ढालना होगा। और अजीजों, अगर मासूम के बताए हुए रास्ते पे चलोगे फिर ये सवाल नहीं पैदा होगा, लेकिन जब तुम दुनिया के लिए पालोगे तो फिर दुनिया ही में उसका अजर पा सकते हो, आखिरत में उम्मीद न रखना। इसलिए कि जब हम खुद ही नहीं कोशिश करेंगे कि औलाद को जब सिखाया ही नहीं हमने कि सूरह अल-हम्द पढ़ी कैसे जाती है, तो फिर बाद में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मरने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा। बस यही होगा, मौली साहब को पकड़ेगा सूरह यासीन पढ़ दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। मौली साहब के पढ़ने का उतना सवाब थोड़ी ना होगा कि जो एक औलाद अपने बाप की कब्र पे बैठ के पढ़ेगी तो उसका सवाब होगा। इसलिए कि इस्लाम जो है वो रिश्तों को देखता है, इस्लाम जो है रिश्तों को निभाता है। वो अजीजों, वो तो मजबूरी की बात है कि हमें नहीं आता तो हम किसी दूसरे से करवा ले। अगर ऐसा ही होता तो हमारे जो है बड़ा इंसान यही करता कि खुद करता ही नहीं, गुलाम और नौकर रख देता। इसीलिए अल्लाह ने तो कहा कि जिंदा हो तो अमल खुद करना पड़ेगा, मरने के बाद दूसरे कर सकते हैं। एक सलवात पर जिंदगी जीने के अल्लाह ने कुछ सलीके बताए हैं, जिंदगी जीने के कुछ तरीके बताए हैं। और सबसे आखिर में जो नंबर आता है वो रिज़्क़ हलाल का नंबर आता है। ये वो चीज़ है कि जिस पे बार बार जितनी ताकीद की जाए कम है, इसलिए कि ये वो एक चीज़ है कि जो कहीं ना कहीं असर ज़रूर दिखा देता है। आप चाहे जितनी तरबियत कर लीजिए, आप चाहे कुरान में डुबो दीजिए उसको, लेकिन अगर रिज़्क़ हराम खिलाया है तो वो अपना असर कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाएगा। इसलिए कि उससे नहीं बचा जा सकता। क्यों? कहा इसी से तो जो है परवरिश होती है। इसीलिए मासूम ने कहा सबसे बड़ी इबादत क्या है? कहा रिज़्क़ हलाल हासिल करना। अगर इंसान एक रिज़्क़ हलाल हासिल करने के लिए निकलता है तो हजारों रकत नमाज और रोजे उसके आगे कुछ नहीं होते हैं। क्यों? इसलिए कि नमाज और रोजा करोगे तो तुम अपने लिए करोगे, लेकिन रिज़्क़ हलाल जितनी तुम्हारे कफालत की जिम्मेदारी है, जिनको जिनको पाल रहे हो वो सब उसके जो है फैज़याब होंगे और सबको उसका फायदा पहुंचेगा। अजीजों, इसलिए कि मासूम ने ये बातें बताई हैं, वरना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या जरूरत थी कहने के कि ये उम्र साथ तेरी ऊपर जो है मेरी बातों का असर नहीं होगा, इसलिए कि तेरा पेट जो है वो हराम ग़िज़ा से भरा हुआ है। मतलब कि मौला साहब बता रहे हैं कि अगर इंसान को चाहिए कि हमारी विलायत को दर्क करे तो सबसे पहली जो ग़िज़ा है वो रिज़्क़ हलाल रखी गई है। बस अज़ीज़ों, फ़ज़ाइल बयान इसलिए होते हैं ताकि इल्म में इजाफा हो जाए, लेकिन असल माल मजलिस जो होता है वो बुकावर हुसैन होता है। आले मोहम्मद पे क्या क़यामत गुजर गई न हम सोच सकते हैं न हम तसव्वुर कर सकते हैं। इसलिए कि जितना आले मोहम्मद के फजाइल हैं उससे कहीं ज्यादा मुसीबतों का भी एहसास नहीं हो सकता। इसलिए कि बीबी ज़ैनब ने जो मर्सिया पढ़ा है कि पछताएगा वो जुल्म कि जो हमारे ऊपर नहीं किया गया। इसलिए कि अजीजों, कौन सा ऐसा जुल्म था कि जो नहीं हुआ। इसलिए कि अजीजों, जहाँ इमाम ने मर्सिया पढ़ा है वहाँ इमाम ज़माना का मर्सिया पढ़ो या सियारत नाहिया का कभी तर्जुमा पढ़ो तो पता चलेगा कि आले मोहम्मद पे कितनी क़यामत गुजर गई। या इमाम सज्जाद का वो मर्सिया पढ़ो कि जब भी कोई पूछता था मौला कहाँ सबसे ज्यादा मुसीबत गुजरी, रो के कहते थे अशाम अशाम अशाम। और जब पूछा गया मौला करबला में बाबा मारा गया, करबला में भाई मारा गया, करबला में भरा घर उजड़ गया, एक मर्तबा इमाम रो के फरमाते इंसाफ से बताओ करबला में मेरा बाबा मारा गया लेकिन कितनी मर्तबा शहीद हुआ? का एक मर्तबा। मेरा भैया मारा गया, कितनी मर्तबा शहीद हुआ? फरमाया
फरमाया एक मर्तबा, फिर इमाम रो के फरमाते थे कि बाजार कूफा और शाम में इमाम सज्जाद हर मकाम पे शहीद हुए। किसी ने मेरी बहन को तमाचे मारे, सज्जाद असीर हुआ। किसी ने मेरी बहन को ताने दिए, सज्जाद असीर हुआ। किसी ने जो है दुर्रे बरसाए, सज्जाद शहीद हुआ। फिर इमाम ने मरसिया पढ़ा, ओकादो जलीलन फिर दमिश्क के काननी। हमें बाजार दमिश्क में एक रस्सी के अंदर बांध के आगे आगे एक जालिम खींचता था, पीछे से जालिम कोड़ा लगाता था। हमें ऐसे घसीटा जा रहा था जैसे जानवरों को घसीटा जाता है। यही वो गम है कि जिसको याद करके तुम्हारा इमाम फरमाता है, अगर सज्जाद इमाम न होता तो सज्जाद मर जाता। अज़ादारों, कितनी कयामत गुजर गई। मसाइब पढ़ने की चीज नहीं होती है। हमारे और आपके यहाँ भी लोग परदेश रोजी रोजगार के सिलसिले में जाते हैं। अगर कोई 10 बरस के बाद भी लौट के आता है तो हम दूर से देख के पहचान लेते हैं कि ये हमारा भाई आ रहा है, ये हमारे वालिद आ रहे हैं। लेकिन आले मोहम्मद कितने गरीब हो गए कि 1 साल के बाद जब लौट के मदीने आए हैं, सगी मां उम्मुल बनीन ने देख के आवाज दी, ए ज़ईफ, कहीं तूने मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन को देखा है? अब्दुल्ला शौहर है, बीवी को देखा, ए शहजादी, अगर रोना है तो चल के इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पुरसा दो, उनका बाबा मारा गया है। जनाब ज़ैनब का ये हाल हो गया, इमाम सज्जाद का ये हाल हो गया। व सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। अल्लाहुम्मा ख़ुस्साना वला ज़ालिमिन लिज़्ज़ालिमीन वक़्तबती वलद ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لن يزيدنا ما بي خالصا ولا نبعد الله بن زياد وبيانا وعمر بن سعد والشمران وعلى بن سفيان وعلى زياد وعلى مروان ولعن الله قاضي الشريع الى يوم القيامه في سورة فاتحة التلاوة فرمائے مرحوم مغفور ظفر حسین ابن دلدار حسین صاحب، طاہر حسین ابن ناصر حسین صاحب کی روح